सो हेलो देयर, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है रोटेशनल मैकेनिक्स पे। आई थिंक 2-3 वीडियोस हुए हैं ऑलरेडी। आवर लास्ट वीडियो वाज ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उससे पहले वी हैव कवर्ड एंगुलर मोमेंटम। उससे पहले हमने रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन दिखी। सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट वीडियो वाज इंट्रोडक्शन एंड टॉक ऑफ फोर्स अबाउट सम एक्सिस। वी हैव डिराइव्ड सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस बिटवीन टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन सो ऑन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, 2-3 टॉपिक्स आज कवर हो गए। शॉर्ट है but they will help us in solving numericals. So angular impulse, before I go to angular impulse, I will see the impulse which we have where we have derived it is equation in I think Newtonian physics. What was that, laws of motion में आई थिंक किया था हमने, सेंटर ऑफ मास एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स, वहाँ पे हमने इम्पल्स भी किया था. सो लेट्स रिव्यू दैट फर्स्ट. Now see, I define impulse as if I define it by say L, then L is defined as integral integral f dt. What's impulse? Impulse is the impact of force. Suppose T1 से लेके T2 तक force पड़ा एक body पे, and the magnitude of the force is F. Now see, what's F? F can be written as dp over dt. Are you getting me or not? So L जो है मेरा, it's integral T1 से लेके कहाँ तक, T2 तक. Okay, what's F? dp over dt into dt. Okay, dt goes, I'm having L is equal to dp integral. So L is equal to p2 minus p1. This was our impulse. Now see, अब हम यहाँ पे angular impulse देखेंगे. What we will gonna see is angular impulse. The angular impulse of a, यहाँ पे था force, तो यहाँ पे torque होगा. The angular impulse of a torque in a given time interval is defined as, if I denote the angular impulse by J, so J is equal to what? Integral T1 से लेके T2 तक tau dt. What tau is? Torque acting on the body. If tau be the resultant torque acting on the body, so tau, we know that by following our previous videos, tau can be written as dl over dt, or tau dt is equal to what? dl. So simple है. So if we integrating this, I am having J is equal to L2 minus L1. वहाँ पे था P2 माइनस P1 लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे है एंगुलर मोमेंटम. आर यू गेटिंग मी और नॉट? ओके, गुड. So thus the change in angular momentum is equal to the angular impulse of the resulting torque. So change in आपको पता है मैंने जो प्रीवियस वीडियोस बनाए थे, मतलब नॉट ओनली ऑन रोटेशनल मैकेनिक्स, जितने भी वीडियोस थे वहाँ पे मैंने टेम्पलेट वो प्लेन लिया था. यहाँ पे टेम्पलेट मैंने रूलर लिया है. आई थिंक इट्स वेरी अट्रैक्टिव और लिखने में भी आसानी होती है. आई थिंक आई विल फॉलो दिस टेम्पलेट. सो टेल मी कि ये कैसा है. ओके, सो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, change in
angular momentum is what? Is equal to the angular impulse of, यहाँ पे था रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पे है रिजल्टेंट टॉर्क. I hope you got this. Oh, okay, thank God. सिंपल था. एंगुलर इम्पल्स, जैसे हम इम्पल्स को नॉर्मली डिफाइन करते हैं इंटीग्रल एफ डी टी, यहाँ पे इंटीग्रल टाउ डी टी, फिर टाउ वी नो दैट डी एल ओवर डी टी, वहाँ पे वी नो दैट पी एल इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी एफ इक्वल टू डी पी ओवर डी टी. सो फाइनली आई गॉट द एंगुलर मोमेंटम फाइनल so finally I got angular impulse is equal to final angular momentum minus initial angular momentum. That's it. I am going to solve a lot of numerical questions on these all very equations at the very end, but फिलहाल के लिए you follow my lectures. हम पहले theory complete करते हैं, at the very end I am gonna to cover some numericals based on these equations. Say tau equal to r cross f, ये क्या है, tau total equal to I alpha, बहुत ही important equations है ये. L equal to mvr, L equal to I omega, most important. conservation of momentum तो है ही important, इसमें क्या ही कहना है. और J equal to L2 minus L1, these are also important. Now see, ये धड़कन कहती है. देखो अभी तक जो हम एंगुलर रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे रिजिड बॉडी जो है मेरी, ठीक है ना, इसकी सिर्फ, इस रिजिड बॉडी की सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी है, ना कि लीनियर वेलोसिटी. इनकी लीनियर वेलोसिटी 0 है, बट ये सिर्फ रोटेट हो रही है. आने वाले लेक्चर्स में वी विल गोना सी द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन प्लस दिस लीनियर. वहाँ पे बॉडी रोटेट भी करती होगी और उनकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी भी या स्पीड भी होगी. तो वहाँ पे रोटेशनल मैकेनिक्स जितनी भी हमने ऊपर इक्वेशंस की है सारी, वहाँ पे वी हैव टू मॉडिफाई देम. सपोज मेरा एक स्फीयर है, ठीक है ना, स्फीयर रोल कर रहा है इस पे बाय सम वेलोसिटी v. ये जो वेलोसिटी v है ना, ये इसके सेंटर ऑफ मास की होगी, बट स्फीयर खुद रोटेट भी करता है ना. तो यहाँ पे दो है, ट्रांसलेशन भी है, रोटेशनल भी है. तो यहाँ पे फिजिक्स चेंज होगी. वी विल सी इट लेटर. कितना लेटर? आई थिंक इसके बाद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो लेंथी टॉपिक होगा. आई थिंक 2-3 लेक्चर्स हो गए उस पर. एंड आफ्टर दैट यही है जो मैंने अभी कहा. ओके, नाउ लेट्स डू वन मोर टॉपिक. शॉर्ट है बट इम्पॉर्टेंट है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी, ठीक है ना, इट्स ओनली रोटेटिंग अबाउट ए गिवन एक्सिस. ये धड़कन कहती है. नाउ सी, ये मेरी रिजिड बॉडी है, तो इसके अराउंड, ए बी के अराउंड मेरी रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है. तो मुझे बताने है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. आई एम टेकिंग सम पॉइंट P हैविंग मास m, ठीक है ना. तो इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी इट्स v. व्हाट इज दिस टेंजेंशियल वेलोसिटी? v को छोड़ो, लीव दिस v aside. सी, oops. See, since my rigid body is rotating by omega around this axis of rotation AB, ठीक है ना, तो ये जो पार्टिकल होगा मेरा, इसका सर्कुलर पाथ होगा.
जिसका रेडियस है r, ठीक है ना। द ith पार्टिकल, सपोज दिस इज ith पार्टिकल, ऑब्वियसली ओके, कंसिडर a rigid body rotating about a line AB with an angular speed ओमेगा, ठीक है ना। डन। नाउ इन्फिनिट पार्टिकल्स हो गए यहाँ पे, इन्फिनाइट पार्टिकल्स हो गए जो कि इस बॉडी को बना रहे हैं। सो आई एम टेकिंग द ith पार्टिकल, द ith, यही P पॉइंट वाला, द ith पार्टिकल इज गोइंग in a circle, in a circle of radius r, okay, with a linear speed, with a linear speed. Now see, have a look, मेरा सर्कल है, ठीक है ना, रेडियस r है, तो एक पार्टिकल है यहाँ पे P, ये रोटेट कर रहा है अराउंड द सर्कुलर पाथ बाय ओमेगा, ठीक है ना। तो रेडियस r है, इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो किसके बराबर होता है, ओमेगा r, सर्कुलर मोशन में किया था सब कुछ। सो इफ आई एम हैविंग ith पार्टिकल, इट्स गोइंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद अ लीनियर स्पीड, तो कितनी होगी फिर, vi इज इक्वल टू ओमेगा r, ठीक है ना। आर यू गेटिंग मी और नॉट। दस द kinetic energy, K means kinetic energy of this particle P, सिंपल है, कोई दिमाग लड़ाने की चीज़ नहीं है यहाँ पे। ओ माय गॉड, फिजिक्स में जब आप दिमाग नहीं लगाओगे तो क्या लगाओगे, नीचे वाला सिस्टम अपना। सो इट्स हाफ ऑफ mi ओमेगा r होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग मी और नॉट। This is the kinetic energy of this particle. So this is for one particle, but I'm interested for the whole system. Okay. तो होल सिस्टम के लिए समेशन होगा इस कंपोनेंट का, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल लिखेंगे और ये होगा किसके बराबर, समेशन आई, हाफ ऑफ mi r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। इट कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ समेशन mi r स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, बट what is mi r square for a body, for a rigid body? It's I, moment of inertia about AB. So kinetic energy total जो है मेरा, it's given by half of I omega. That's it. So beautiful, so elegant. Are you getting me or not? सो जो काइनेटिक एनर्जी होगी एक बॉडी की, काइनेटिक एनर्जी जो होगी एक बॉडी की, अबाउट व्हाट, अबाउट द रोटेशन ऑफ एक्सिस, इट्स गिवन बाय हाफ ऑफ आई ओमेगा। आई थिंक एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे इस पे, एग्जाम्पल एक करेंगे, लेट्स हैव अ लुक, बट आई विल चेंज माई पेन। हाउ इज दिस, ओके, एग्जाम्पल एक करेंगे इस पे, काइनेटिक एनर्जी पे। नाउ सी, यहाँ पे एक ओके 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 देरी कर देते, नो कॉम डाउन, ठीक है ना। यहाँ पे एक मास है m जो कि रोटेट कर रहा है, जो कि रोटेट कर रहा है इन द सर्कुलर, अबाउट द सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। तो
इट्स रोटेटिंग अबाउट लाइन ए बी, अबाउट लाइन ए बी। जो ये ए बी है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल। गुड। एंड लेट्स सपोज, let us suppose this r is 2 meters, radius of circle is 2 meters, ठीक है ना। तो इस पार्टिकल की जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, सॉरी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, सपोज इट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट आई एम हैविंग टू डू, आई हैव टू फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। बताना ही काइनेटिक एनर्जी। आई नो आर गेटिंग में यार, क्वेश्चन समझ आया ना, सिंपल क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाया यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी जो है, इट्स इक्वल टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। व्हाट्स आई, इट्स अ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट ए बी। सो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, mass into r square. What's r? 2 meters, so it's 4. Let us suppose m is 1 kilogram, ठीक है ना। So my moment of inertia is mr square, so it is 4 into 1, so it is 4 kilogram meter square, ठीक है ना। So it's the moment of inertia. Also v is equal to omega r. I know that tangential velocity is given by omega into r. It's given that v is 3 meter per second, 3 meter per second. Omega हमें चाहिए, r is 2, so omega is 3 by 2 radian, ठीक है ना। Therefore ओके देयरफॉर यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, इट्स रेडियन पर सेकंड, ऐसा यूनिट का रेडियन पर सेकंड। ओमेगा इक्वल टू व्हाट, डी और डी टी। ओके, आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद दैट। देयरफॉर क्या निकालना था मुझे यार, क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द क्वेश्चन। अच्छा, मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ व्हाट्स आई हमने अभी निकाला था, इट्स 4 इंटू व्हाट्स ओमेगा स्क्वायर, इट इज़ 3/2 होल स्क्वायर, तो जूल्स में ही होगा। काइनेटिक एनर्जी जो है, इट्स 2 2 4 4 4 गो, 3 9/2 जूल्स, दैट्स इट। ये इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी, ख़त्म। अरे गेटिंग में यार, यार शॉर्ट टॉपिक्स है आज, कुछ है ही नहीं यार, चिल करो इस लेक्चर में। नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू नो द वर्क डन बाय टॉर्क। देखो, फोर्स अगर हम अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पे और अगर बॉडी डिस्प्लेस होगी तो वर्क डन होती है वहाँ पे, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द फोर्स। तो टॉर्क से भी क्या होता है, वर्क डन होता है। एंड आई एम इंटरेस्टेड टू नो द फॉर्मूला या द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क डन एंड टॉर्क। ओके, धड़कन ये कहती है, धड़कन ये कहती है। ओके ओके ओके, सो वर्क डन बाय टॉर्क, दिस इज माई फेवरेट पेन। नाउ सी, वही रिजिड बॉडी है, ए बी के अराउंड रोटेट कर रही थी है बाय ओमेगा, ठीक है ना, वही है, कुछ नया नहीं है। नाउ सी, व्हेन आई अप्लाई टॉर्क, तो टॉर्क से क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होती है। टॉर्क जब मैं अप्लाई करता हूँ तो एंगुलर एक्सेलरेशन होती है ना प्रोड्यूस, टाउ इज व्हाट, आई अल्फा
tau is proportional to alpha for a given this axis of rotation. So जब मैं टॉर्क अप्लाई करता हूँ तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है. आर यू गेटिंग मी और नॉट? जब एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. ठीक है ना बच्चे? द torque produces angular acceleration. The torque produces angular acceleration and thus the kinetic energy increases. ठीक है ना? The power delivered by the torque, वही बेसिक है, इसीलिए मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे. इट्स वेरी बेसिक. द पावर डिलीवर्ड बाय द टॉर्क. Okay, we know that P is equal to dW over dt. dW over dt. What's W? It's K. What is this called? Kinetic energy. dK over dt. Are you getting me or not? Power is equal to d over dt of what's kinetic energy for a rotating body? Yes, half of I omega square. half of I अभी किया है ना हमने, half of I omega square. तो I is constant, omega d omega over dt. ठीक है ना? डेरिवेशन d over dt of omega square is 2 omega d omega by dt. अब आप बोलेंगे ये 2 कहाँ गया है? इसको इसने खा लिया, नीचे वाले 2 ने. That's it. That is it. Okay. Good. थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे तो पावर डिलीवर्ड जो होगा, it is what's d omega over dt? It's alpha, so it's I omega into alpha. What is I alpha? It's tau, so it's tau omega. What's power? Is tau into omega. अरे सिंपल है यार, कुछ नहीं, मैं भी कर रहा हूँ, बस एक्सप्रेशंस को वहाँ यहाँ ले रहा हूँ. It's as simple as that. Now see. Work done in an infinitesimal angular displacement. जब एक इन्फिनाइट डिस्प्लेसमेंट होगी ना, इन्फिनाइट, सपोज ये पार्टिकल है, ठीक है ना, अभी ये यहाँ पे है, आफ्टर सम टाइम ये यहाँ पे होगा, तो ये थीटा है, डी थीटा है यहाँ पे, तो इसमें कितनी वर्क डन हुई बाय आवर एक्सटर्नल फोर्स. अरे हम एक्सटर्नल फोर्स ही लगा रहे हैं ना बाहर से, तभी बॉडी मेरी रोटेट कर रही है, तो वही तो मैं कर रहा हूँ. The work done in infinitesimal angular displacement d theta, suppose, is, now see, dw is what? P dt. P is equal to dw over dt, so dw equal to this. What's my P? It's tau omega dt as it is. So dw equal to what's omega dt? It's d theta, so it can be written as tau d theta. Since omega is equal to d theta over dt. सर्कुलर मोशन चल रहा है यहाँ पे, मैंने पहले लेक्चर में बोला है, मेरे सर्कुलर मोशन की सीरीज़ देखना, 2-3 वीडियोस एटलीस्ट पहले के देखना, यू विल कम टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है ना? नाउ द वर्क डन इन ए फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, ये इन्फिनाइट के लिए था, तो फाइनाइट के लिए फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा 1 to theta 2, w equal to integral dw, so it's integral
theta 1 to theta 2 tau d theta chado mado. That's it. This is the work done by the applying torque on the system, and the body goes from theta 1 to theta 2 displacement. This is the work done. अरे मेरा नॉट बहुत बड़ा वीडियो हो गया यार, 25 मिनट। मुझे लगा था 10 मिनट का होगा। इतना अच्छा मैं पढ़ाता होगा, कभी पढ़ाई नहीं की है का, कभी किसी मर्द ने छुआ नहीं का, वैसे ही कभी तुमने किसी फिजिक्स बुक को छुआ नहीं का। बहुत ही अच्छी सीरीज है यार। न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, टेंशन मत ले लो, और पूरा फ्री है। जस्ट एंजॉय, स्टडी एंड फॉलो इन फिजिक्स। ये धड़कन कहती है। और मुझे आज का टेम्पलेट बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ही सेक्सी टाइप से लिख रहा हूँ यार, नहीं तो थोड़ा वहाँ ऊपर नीचे लिखता था। और पेन भी मैं डिफरेंट यूज़ करता हूँ, इससे थोड़ा अट्रैक्टिव बनता है सारा कुछ। ओके 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 ओके। देखो, थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक चलते हैं। 1 सेकंड। आज का हो गया, यू मे लीव नाउ, बट स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड वो देखेंगे। सी, दिस इज़ माई बॉडी, दिस इज़ माई रिजिड बॉडी, जो कि ए बी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेट क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे बाय ओमेगा। ठीक है ना। नाउ सी, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो ये बॉडी एज इट इज रहेगी। क्यों ये नाचेंगी, क्यों ये घूमेगी, जब फोर्स है ही नहीं। बट अगर मैं इस पॉइंटिकल पॉइंट पी पे को कंसिडर करूँगा, या इस पॉइंट पी को, तो मैं जब बाहर से फोर्स एफ डालूंगा यहाँ पे, नाउ सी, इसकी रेडियस है ना आर, यहाँ से, और गेटिंग मी आर नॉट, तो टॉर्क होगा ना आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क है इसमें। टॉर्क क्या करता है बॉडी पे, जब हम बॉडी पे टॉर्क डालते हैं तो बॉडी रोटेट होती है। क्या होती है? रोटेट। सो इफ एफ इक्वल टू 0, देन टॉर्क भी 0 होता है। बॉडी डोंट रोटेट। क्या? फिर बॉडी रोटेट नहीं करती है। बट when my f is equal to 0, so is not equal to 0, then torque is probably not equal to 0। तो फिर 2 कंडीशंस है, बट आई एम टेकिंग torque is not equal to 0, तो बॉडी रोटेट होती है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है। वो एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है तो एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है वहाँ पे, तभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसको समझो आप। फोर्स इज नेसेसरी, force is mandatory, that's why torque plays its role। जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स बिल्कुल ज़ीरो होगा तो उस टाइम टॉर्क होता ही नहीं है। जब टॉर्क ही नहीं होगा तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी। दिस इज एज सिंपल एज दैट। ओके, गुड। धड़कन ये कहती है जाने। थीटा यहाँ पे जो है इट्स रेडियंस में है ओब्वियसली। डिग्री इज नॉट ऐसा यूनिट, थीटा है। सो पावर इज इक्वल टू टाउ आई, याद रखो। विल सी इट लेटर ऑन। ठीक है ना। कहाँ से स्टार्ट हुआ था आज का लेक्चर? यहाँ से। ओह, बड़ा है। ओके, बाय। ठीक है ना। टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद व्हेन यू कम टू नो अबाउट द फिजिक्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन वी विल सी द फिजिक्स व्हेन अ बॉडी रोटेट्स एज वेल एज ट्रांसलेट्स। तो जो कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी फिजिक्स होगी। वी विल सॉल्व सम ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। आपका ग्रिप बढ़नी चाहिए रोटेशनल पे। थैंक्स, सी यू।